ہیں۔ سب جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر سری نگر سمیت وادی کے دیگر اضلاع میں پرامن اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کی خاطر اضافی کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن امیدواروں نے اپنی نامزدگیاں داخل کی ہیں انہیں مکمل سیکورٹی دی گئی ہے۔ جنوبی کشمیر میں چناوی مہم اس وقت زوروں سے جاری ہے، جس کے پیش نظر شوپیان، پلوامہ، کلگام اور اننت ناگ اضلاع میں اضافی دستوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انتخابی ریلیوں اور عوامی اجتماعات کے مقامات کو بھی محفوظ بنایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے خطرے کو ٹالا جا سکے۔ ادھر جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں چناوی سرگرمیاں جاری ہیں اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات، جوابی الزامات اور بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں چناؤ مہم تقریباً آخری پڑاؤ پر پہنچ چکی ہے، جبکہ 18 ستمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ اس طرح چناؤ مہم کے صرف 6 دن بچے ہیں۔ اس دوران دوسرے مرحلے میں بھی امیدواروں کے حتمی فہرست سامنے آ چکی ہے۔ دوسرے مرحلے کی 26 نشستوں کے لیے 239 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ گزشتہ روز 27 امیدواروں نے اپنے کاغذات واپس لیے ہیں۔ سب سے زیادہ 9 امیدواروں نے بڑگام ضلع سے اور 6 نے سری نگر ضلع سے اپنے کاغذات واپس لیے۔ اطلاعات کے مطابق سری نگر ضلع میں 93 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ بڑگام میں 46، راجوری میں 34، پونچھ میں 25، گاندربل میں 21 اور ریاسی میں 20 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کشتواڑ، ڈوڈا اور جنوبی کشمیر کے اضلاع میں 18 ستمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ نیشنل کانفرنس، PDP، بی جے پی اور کانگریس کے سینئر لیڈران ان دنوں جنوبی کشمیر کے دورے پر ہیں۔ کلگام ضلع کے دیوسر، کلگام اور دمال حاجی پورہ اسمبلی حلقوں میں چناوی مہم زوروں پر ہے اور امیدوار گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ کلگام سے فاروق راتھر کی رپورٹ۔ پورے ضلع میں سبھی پارٹیاں اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ضلع کے تینوں حلقوں کلگام، دیوسر اور دمال ہانجی پورہ کے سبھی چھوٹے بڑے قصبوں اور دیہی علاقوں میں خاصا گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے، جبکہ گاڑیوں پر لگے اسپیکروں کے ذریعے خوشلان آوازوں میں ووٹ مانگنے کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ضلع الیکشن آفیسر کلگام اطہر عامر شفیق خان کی ہدایت پر ضلع کے سبھی تحصیل اور بلاک سطح پر رائے دہندگاں میں انتخابات کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس دوران جہاں نیشنل کانفرنس، PDP، CPIM اپنی پارٹی، DPAP، عام آدمی پارٹی، عوامی اتحاد پارٹی اور پیپلز کانفرنس جلد سے جلوس اور الیکشن ریلیاں منعقد کرنے میں پیش ہیں، وہیں آزاد امیدواروں کے علاوہ دیگر چھوٹی بڑی پارٹیاں الیکشن ریلیوں کے ساتھ ساتھ ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے گھر گھر مہم چلا رہے ہیں۔ حلقہ انتخاب کلگام میں اتحادی پارٹیوں کے امیدوار اور سابق MLA کلگام، CPIM کے محمد یوسف طارقانی کلگام کے مختلف علاقوں میں ریلیاں، روڈ شوز اور جلسے جلوس منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں گاؤں جا کر میٹنگوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے گھر گھر مہم چلا رہے ہیں۔ اس حلقے میں PDP کے امیدوار محمد امین ڈار کے ساتھ ساتھ پیپلز کانفرنس کے امیدوار سابق ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا نذیر احمد لاوی، اپنی پارٹی کے محمد عاقب ڈار اور تنترس پارٹی کے سدرشن سنگھ کے علاوہ جماعت اسلامی کے حمایتی امیدوار سیار احمد ریشی بھی انتخابی مہم زور شور سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے جی توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ حلقہ انتخاب دیوسر میں PDP کے سرکردہ لیڈر اور سابق MLA دیوسر محمد سرتاج مدنی الیکشن ریلیوں کے ساتھ ساتھ ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے اور اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے گھر گھر مہم چلا رہے ہیں، جبکہ نیشنل کانفرنس کے امیدوار پیرزادہ فیروز احمد شاہ اور کانگریس کے امان اللہ ماتو دوستانہ ماحول میں اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے ریلیاں منعقد کرنے کے علاوہ گاؤں گاؤں جا کر میٹنگوں اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح DPAP کے امیدوار اور سابق MLA دیوسر محمد امین بٹ، عوامی اتحاد پارٹی کے سہیل احمد بٹ، اپنی پارٹی کے ریاض احمد بٹ اور عام آدمی پارٹی کے شیخ فدا حسین کے علاوہ آزاد امیدوار عبدالرؤوف نائک اور ممنوع تنظیم جماعت اسلامی کے حمایتی امیدوار نذیر احمد بٹ بھی اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ادھر حلقہ انتخاب دمال ہانجی پورہ میں نیشنل کانفرنس کی امیدوار اور سابق وزیر سکینہ ایوتی کی طرف سے انتخابی ریلیاں، میٹنگیں اور روڈ شوز، جلسے جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں اور اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ اپنی پارٹی کے امیدوار اور سابق وزیر مملکت عبدالمجید پڑروی اپنے انتخابی حلقے میں میٹنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور گاؤں گاؤں جا کر چناوی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ PDP کے امیدوار گلزار احمد ڈار، JDU کے محمد ایوب متو اور عوامی اتحاد پارٹی کے عارف محمد ڈار کے ساتھ ساتھ سجاد احمد ڈار نور آبادی بھی اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ریلیوں اور میٹنگوں میں مصروف ہیں۔ یہ تھے کلگام سے فاروق راتھر۔ پہلے مرحلے میں کشتواڑ ضلع کے اندر
गढ़वाल, पाडर और किश्तवाड़ असेंबली हलकों में भी वोटिंग होगी, जहां बेशतर निशस्तों पर बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी अपने उम्मीदवारों के हक में जिले में मुहिम चला रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली हल्का पाडर में पार्टी उम्मीदवार पूजा ठाकुर की हिमायत में चुनावी जलसों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने गुज़श्ता 10 साल से बराह रास्त हुकूमत करके जम्मू कश्मीर के आवाम को परेशान कर दिया है। एक रिपोर्ट मुश्ताक देव से। जिला किश्तवाड़ की दोनों असेंबली निशस्तों में इन दिनों इंतखाबात के सिलसिले में सभी सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार सरगर्मियां तेजी से चला रहे हैं और रात दिन अवामी राब्ते और जलसे जुलूस मुनक़द करने में लगे हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ असेंबली हल्का के इंतहाई पसमानदा व पहाड़ी इलाका कुंतवाड़ा का दौरा किया और यहाँ नागपटना और बटकूट में अवामी जलसों से खिताब करते हुए उनको यकीन दिलाया कि वो अगर हुकूमत में आते हैं तो इस इलाके की पसमानदी को यकीनी तौर पर दूर करेंगे। मौसम अबर आलूदा होने के बावजूद उमर अब्दुल्ला सज्जाद अहमद किचलू को साथ लेकर हल्का इंतखाब पाडर के गुलाबगढ़ पहुंचे। अपनी तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी की क़यादत डबल इंजन की सरकार के नारे लगाकर अवाम को गुमराह कर रही है। जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार ने अवाम को बर्बादी और तबाही, महंगाई, बेरोजगारी के सिवा दिया ही क्या है। जम्मू कश्मीर में बिजली का किराया आसमान को छू रहा है, कुकिंग गैस की कीमतों को बेकाबू करके रखा गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ बिजली के कई प्रोजेक्ट गैर तामीर है, जहाँ यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए था, मुलाजमत मिलनी चाहिए थी, लेकिन सद है कि सिर्फ दीगर रियासतों से ठेकेदारान और इंजीनियर यहाँ तैनात किए गए और यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को मायूस कर दिया गया है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत में आने की सूरत में वो इस नाइंसाफी को खत्म कर लेंगे, रियायती नरकों पर बिजली फराहम कर लेंगे और मैनिफेस्टो में वादा करता सभी सहूलियात को जमीनी सतह पर पूरा करेंगे। इस मौका पर सज्जाद अहमद किचलू और पूजा ठाकुर ने भी इज्तिमा से खिताब किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी महेंद्र सिंह के अलावा बहुत से सियासी कारकुनों ने इस मौके पर एनसी में शमूलियत इख्तियार की। इधर बीजेपी के जोमा भी किश्तवाड़ और पाडर हल्कों में भरपूर सतह पर अवामी राब्ते की मुहिम जारी रखे हुए हैं। पार्टी के एक सीनियर रहनुमा तरुण चुग इस मुहिम में इनके साथ रहते हैं। मालूम हुआ है कि कई तंजीमी जोमा किश्तवाड़ और पाडर हल्कों के दौरे पर आने वाले हैं। पीडीपी भी इंद्रवाल और किश्तवाड़ हल्कों में वोटरान को अपने हक में करने के लिए मीटिंगों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हल्का किश्तवाड़ के पीडीपी के उम्मीदवार फिरदौस मुश्ताक और इंद्रवाल हल्का के उम्मीदवार शेख नासिर हुसैन गांव-गांव जाकर लोगों से वोट तलब कर रहे हैं। इधर हल्का इंतखाब इंद्रवाल में अगरचे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं, ताहम सख्त मुकाबला दो आजाद उम्मीदवारों साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सरूरी और प्यारेलाल शर्मा के दरमियान देखने को मिल रहा है। उनके कारकुनान रात भर भी रैलियां निकालकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के दर पे रहते हैं और एक दूसरे पर इल्जामिया तराशा करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। अब 18 सितंबर को जब राय दहिंदगान अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे तो तब अंदाजा किया जाएगा कि कामयाबी का सेहरा किन के सर सजेगा। ये थे किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। समीन पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी के तरक्की के हवाले से कायम किए गए रिकॉर्ड से बाकी पार्टियां घबरा रही हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर की बात करती है। साबिक वजीर आला ने इन बातों का इज़हार ख्याल जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा पीडीपी का जो तरक्की का रिकॉर्ड है, चाहे वो रास्ते खोलने का हो, यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करने का हो, IIM कायम करने का हो, रोजगार के मौके फराहम करने का हो, बाकी पार्टियां ये देखकर घबरा रही हैं। उनका कहना था कि बाकी पार्टियों को लोगों से माफी मांगने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस दौरान बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज जम्मू में हर घर बीजेपी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने असेंबली हल्का जम्मू वेस्ट से ये मुहिम चलाई। उनके हमरा मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और बीजेपी उम्मीदवार अरुण गुप्ता भी थे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी हेडक्वार्टर से जियारत मीरकशा तक एक रोड शो की क़यादत की। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। समीन तीसरे मरहले में इन दिनों उम्मीदवार नामजदगी कागजात जमा करा रहे हैं। वादी कश्मीर में जिला बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा में तीसरे मरहले में पोलिंग होगी और ये पोलिंग 1 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है और इतलात के मुताबिक कल कई असेंबली हलकों में उम्मीदवार नामजदगी कागजात जमा कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के 6 असेंबली हलकों में दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है, जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन, चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी, अब्दुल्ला खान, कैसर जमशीद लोन, फयाज अहमद मीर, जावेद मिर्चाल, राजा मंजूर, मीर सैफुल्ला और दीगर
कई सरकर्दा लीडरान मैदान में हैं और ये भी इतलात हैं कि मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद भी कुपवाड़ा जिले से असेंबली चुनाव लड़ेंगे। कुपवाड़ा जिले में चुनावी सरगर्मियों के हवाले से एक रिपोर्ट के साथ फयाज हमीद। अब जबकि तीसरे और आखिरी मरहले में जिला कुपवाड़ा की 6 असेंबली नशस्तों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग की तारीख मुकर्रर है, जबकि 12 सितंबर को कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशीद लोन ने कागजात नामजदगी दाखिल की, जबकि आज अवामी इत्तेहाद पार्टी के फिरदौस अहमद बाबा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर नसीर अहमद आवान ने कुपवाड़ा और करना में कागजात नामजदगी दाखिल किए। जूं जूं इंतखाबात की तारीख नजदीक आ रही है, इंतखाबी मैदान में मौजूद उम्मीदवार वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए सरगर्म होने लगे हैं। इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने निकले तमाम सियासतदान एक दूसरों पर हावी होने की कोशिशों में अपना पसीना बहा रहे हैं। अभी तक हालांकि किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी बड़े जलसे से खिताब नहीं किया है, ताहम यहाँ के तमाम सियासतदान जिनमें आजाद उम्मीदवार भी शामिल है गांव देहात जाकर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ सियासतदानों ने घर घर जाकर वोटरों को अपनी तरफ खींचने की मुहिम भी तेज कर दी है। हालांकि अभी तक सियासत का पारा आखिरी हदों को नहीं छू रहा है, ताहम इंजीनियर रशीद की आने वाले दिनों में होने वाली रिहाई की अफवाहों, एडवोकेट अब्दुल हक खान की तबीयत नासाजगार होने की बातों, ममनुआ जमात इस्लामी से जुड़े उम्मीदवारों का इंतखाबात में आने की चर्चाओं, सज्जाद लोन का हंदवाड़ा और कुपवाड़ा की 2 असेंबली नशस्तों से एक साथ इंतखाबात लड़ना, इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद का सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर इंतखाबात लड़ने का फैसला लेना और कई सियासी पार्टियों के हमदर्दों का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का हाथ थामना, ये जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में यहाँ की सियासत का पारा अपनी आखिरी हदों को जरूर छुएगा। आपने फयाज हमीद की रिपोर्ट सुनी। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। कूर ते वजथन नखर तो नोश ते अनथन मकान ते आलीशान वनी ते फिक्र तो कमिच शुक्र तस परवरदिगारस को अलबत्त वनी से छु मख तमन्ना या दिलस मस क्या सना बकरा ज़ियारते काबे शरीफ सेहत सुविद वाह खंड बोक त्राव है असस हे कसे छु खंड बोक त्रावन असस क्या सा दलील हे कोइम सुबह वक्तस पेठे क्या सा दप्यो मसा ज़ियारतस गछो मगर कामी एजेंसी हिंदी जरिए गछो वसा भरोस मशवास मसा बर खाम रहीक ट्विन ट्रैवल एंड टूरिज्म छुना। हाँ क्या बोलत रहीक ट्विन ट्रैवल एंड टूरिज्म आख भरोसेमंद बेहतरीन टूर कंपनी यमो 2024-25 बाबत उम्रा अदा करने खतर सठा पुरकशिश प्रोग्राम छु मुरतब कोरमुत। सफर आसान, रिहाइश आलीशान, खेन चन लाजवाब। विश्त क्या गई कात जम्मू कश्मीर टूरिज्म महकमश तस्लीम शुदा कंपनी रहीक ट्विन ट्रैवल एंड टूरिज्म ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बापत खसूसी रियायत छे। अगर तुम 3 सितंबर 2024 ताम बुकिंग करने यो तो मेल 5,000 रुपयन हज खसूसी रियायत रब्त करियो रहीक ट्विन ट्रैवल एंड टूरिज्म हेड ऑफिस नजदीक HP पेट्रोल पंप मलूरा श्रीनगर। फोन 600-553-5865। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265।
शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान अंदरूनी कशीदगी की इतलात के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीडरान की मीटिंग आज शाम मुतवक्की है, जिसमें कांग्रेस के साबिक सदर वकार रसूलवानी के बयान की मजम्मत की जाएगी। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कारा भी आज शाम जम्मू पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी लीडरान को अलायंस के खिलाफ बोलने पर सख्त तंबे करेंगे। बताया जाता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कारा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी खुद ऐसे बयानात से अलग रही है और इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की भी मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि बानिहाल की तकरीब के दौरान वकार रसूलवानी ने जो जबान इस्तेमाल की वो नाशाइस्ता थी। बताया जाता है कि तारिक हमीद कारा आज शाम जम्मू पहुंच गए हैं और वो ज़ाती तौर पर सूरत हाल की निगरानी करेंगे। ये भी बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वकार रसूलवानी के बयान को सख्त संजीदा लिया है और अपनी नाराजगी से दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को भी आगाह किया है। इस दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर शकील अहमद ने आज अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारा अलायंस मजबूती से अवाम के बीच में है और जो अलायंस अवाम के बीच होता है, अगर कोई फर्द इस अलायंस में फूट डालने की कोशिश करता है तो लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं। सभी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में जिन 18 हलकों में पोलिंग होने वाली, उनमें पुलवामा नशस्त पर सख्त और दिलचस्प मुकाबले की तवक्को बताई जा रही है और सभी की नजरें इस हल्के पर मरकूज हैं। अगरचे इस हल्के के लिए कुल 14 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पहले मरहले में जिले पुलवामा के अवंतीपुरा और त्राल असेंबली हलकों में भी वोटिंग होगी। त्राल और अवंतीपुरा में उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला बताया जाता है और चुनावी मुहिम के आखिरी दिनों में सियासी लीडरान और उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। एक रिपोर्ट सुनते हैं शबीर भट्ट से। जनूबी कश्मीर के दीगर अजला की तरह पुलवामा जिले में भी चुनाव मुहिम अरूज पर है, जहां चारों असेंबली हलकों पुलवामा, राजपोरा, त्राल और पांपोर में उम्मीदवार चुनावी रैलियां, जलसों और रोड शोज के अलावा घर घर मुहिम जारी रखे हुए हैं और वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। इस हवाले से आज पीडीपी सरबराह व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा टाउन और कई दीगर जहात में अपने उम्मीदवार वहीद रहमान परा के हक में चुनावी मुहिम की क़यादत की। खिताब में महबूबा मुफ्ती ने बताया कि पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जिसने जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। उन्होंने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि जेलों में कैद नौजवानों के वालिदैन को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं कुछ लोग जेलों में होकर भी असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं और प्रोटोकॉल के मजे ले रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जमात इस्लामी पर पाबंदी हटाने की मांग करते हुए कहा कि जो उम्मीदवार इस वक्त जमात के नाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जमात इस्लामी के हकीकी नुमाइंदे नहीं है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील बंद ने भी कई इलाकों में चुनावी जलसों से खिताब करते हुए अपने अवाम को अपने हक में वोट डालने की अपील की। इस दौरान हल्के राजपुरा में भी सियासी मुहिम अरूज पर है, जहां पीडीपी के सईद बशीर और एनसी के गुलाम मोहिद्दीन मीर के दरमियान दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। त्राल में भी सियासी मुहिम अरूज पर है, जहां जो अवंतीपुरा में महिला कांग्रेस की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें एलएनएस उम्मीदवार सुरिंदर सिंह चन्नी, शमीमा रैना और डॉक्टर फारूक आगा शामिल हुए। कांग्रेस की कौमी महिला सदर अलका लांबा कुछ जाती वजूहात की बिना पर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी। इस दौरान पीडीपी के उम्मीदवार रफीक अहमद नायक, एआईपी के डॉक्टर हरबख्श सिंह, आजाद उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट, माशर पुष्पिंदर सिंह और दीगर लीडरान भी चुनावी मुहिम में मसरूफ अमल है। पांपोर हल्के इंतखाब में एनसी के हसनैन मसूदी, पीडीपी के ज़हूर अहमद मीर और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल शाह खासे सरगर्म हुए हैं, जबकि एआईपी के उम्मीदवार अब्दुल कयूम मीर ने आज खिव और मजाफत में चुनावी मीटिंगों में शिरकत की और अपने हक में अवाम से वोट तलब किए। जिला भर में इंतखाबात को साफ शफाफ माहौल के अंदर मुनक़िद कराने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीमें पूरे जिले में गश्त कर रही है। ये थे त्राल से शब्बीर भट्ट। और अब एक चुनावी रिपोर्ट के साथ केडी मिनी पुंछ राजौरी से। जिला पुंछ और राजौरी में उम्मीदवारों के नाम वापस लेने और कागजात की छानबीन के बाद इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वालों के हतमी नाम सामने आ गए हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर पुंछ की तरफ से जारी होने वाली लिस्ट के मुताबिक असेंबली हल्का हवेली पुंछ में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज जान, पीडीपी के शमीम अहमद गनई, बीजेपी के चौधरी अब्दुल गनी के अलावा 11 आज़ाद उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह तीनों रवायती पार्टियों को चुनाव जीतने की उम्मीद है, लेकिन अगर गुज्जर वोट बट गया तो पांसा किसी तरफ भी पलट सकता है। असेंबली हल्का मेंढर में कुल 9 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला आराई होगी, लेकिन असल मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी जावेद राना, पीडीपी के नदीम अहमद खान और बीजेपी के मुर्तजा खान के दरमियान होने की उम्मीद है। लेकिन ऐन वक्त पर पीडीपी के मारूफ खान का नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाना
और पहाड़ी वोटों का बीजेपी और पीडीपी के दरमियान बंट जाने का इम्कान है, जिसके बायस कोई हतमी राय बनाना आसान नहीं है, जबकि 9 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। उधर असेंबली हल्का सर्वकोट में अब 9 उम्मीदवार चुनाव मुकाबले में हैं, जिनमें बीजेपी के पीर मुश्ताक अहमद बुखारी, कांग्रेस के मोहम्मद शाह नवाज और आज़ाद उम्मीदवार व साबिक एनसी के मेंबर असेंबली चौधरी मोहम्मद अकरम भी मैदान में हैं। उधर राजौरी जिला में असेंबली हल्का कालाकोट में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बीजेपी के रणधीर सिंह, एनसी के यशुवर्धन सिंह, पीडीपी के मजीद हुसैन शाह और अपनी पार्टी के अरुण शर्मा के अलावा 7 आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। असेंबली हल्का नौशहरा में एनसी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार चौधरी, पीडीपी के हक नवाज, बीएसपी के मनोहर सिंह और बीजेपी के रविंदर शर्मा के दरमियान कांटे की टक्कर है, जबकि 8 आज़ाद उम्मीदवार भी ख्वाब देख रहे हैं। असेंबली हल्का राजौरी में 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है, जिनमें पीडीपी के तसद्दुक हुसैन, कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद, बीजेपी के विनोद कुमार और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इसी तरह असेंबली हल्का बुद्धल में पीडीपी के गुफ्तार अहमद, बीजेपी के चौधरी जुल्फकार अली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद इकबाल के अलावा 8 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। उधर असेंबली हल्का थन्ना मंडी, जो इस बार नया असेंबली हल्का वजूद में आया है, यहाँ पीडीपी के कमर हुसैन, बीजेपी के इकबाल मलक और कांग्रेस की तरफ से साबिक वजीर मोहम्मद शबीर खान के अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 10 बरस के बाद होने वाले असेंबली चुनाव में अवाम का जोश और खरोश देख कर लगता है कि इस बार कार्ड तोड़ पोलिंग होगी और जीत किसी की भी हो, बिलाखिर जमहूरियत की जीत होने जा रही है। ये थे पुंछ राजौरी से केडी मेनी। सामीन, मरकजी हज कमेटी की इत्तला के मुताबिक हज 2025 के लिए दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। तमाम ख्वाहिशमंद अफराद से कहा गया कि वो जम्मू कश्मीर हज कमेटी से मजीद तफसीलात हासिल करें। फकीर वारिस मोहम्मद का सालाना उर्स 12 सितंबर 2024 को आबाई गाँव वाहिदपुरा गांधरबल में मनाया जाएगा। 12 सितंबर को मरहूम के मरकज पर एक तकरीब मुनक्कद होगी, जबकि आबाई घर पर भी एक तकरीब शब्बर जारी रहेगी। पहलगाम से मकामी बाशिंदों ने शिकायत की है कि मौसम सरमा शुरू होने से कबल ही इलाके में शदीद नौयत की कटौती शुरू हो चुकी है। पहलगाम और इसके मज़ाफ़ात में आबाद सारिफीन का कहना है कि यात्रा के 2 महीनों के दौरान वहां बेहतर तरीके पर बिजली दी जाती थी, लेकिन यात्रा खत्म होने के साथ ही बिजली भी गायब होने लगी है और अब वहां बिजली के आने जाने का कोई मुनासिब शेड्यूल ही नहीं, जबकि पहलगाम में आजकल भी सयाहों का आना जाना जारी है और सयाह भी बिजली कटौती से आजिज आ चुके हैं। इलाके के लोगों ने मुतालबा किया कि बिजली सप्लाई में फौरी तौर माकूलियत लाई जाए। समीन, जम्मू कश्मीर में बुजुर्ग अफराद, माजूर और बेवाएं माहाना मुशायरे से 3 महीने से महरूम है और इस तरह से उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें वेरिफिकेशन और कभी ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर भी परेशान किया जाता है। माजूर अफराद के एक वक्त ने बताया कि कई बार महकमा सोशल वेलफेयर से रब्ता कर चुके हैं, लेकिन हर बार ज़बानी यकीन दहानियाँ दी जाती हैं पर अमली तौर कुछ नहीं किया जाता और इस वजह से वो सख्त माली मसाइल से गुजर रहे हैं। जावेद अहमद टाक बोल रहा हूँ। हमारी गुजारिश है कि हमारा जो पेंशन आता था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए ओल्ड एज के लिए, विडोज के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, वो पिछले 3 महीने से नहीं आ रहा है। जो हमारी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, खासकर वुमेन विद डिसेबिलिटी जो घरों में ही दवाइयों पर मुनस्सर है, बच्चों को जो मिर्गी के चक्कर आते हैं उनके लिए जो उनकी दवाई है वो मुतासर हो चुकी है, क्योंकि उनको जो पैसा ही नहीं आता है तो उनके घर वाले भी बहुत मुश्किल में होते हैं। ज्यादातर लोग इसी पैसे पे मुनस्सर है जो फैमिली चलाते हैं, जिनके घर में बच्चों का फीस भरना है, लेकिन काफी मुतासर है हम। इससे हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। हम आपके चैनल के वसादत से गवर्नमेंट तक ये गोशगुजारी करना चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कम से कम कोई भी पेंशन माहाना बंद नहीं करना चाहिए या इसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो दुकानदार हमें रास्ते से नहीं जाने देते हैं या तो कर्जदार हमें बीच सड़क पे पकड़ते हैं। तो इससे हमारी काफी जिंदगी में मतलब एक तो हमाकत भी हो जाती है और हमारा जीना दुश्वार बन चुका है। माजूर अफराद 3 माह से माहाना मुशायरे से महरूम, सख्त परेशानियों का सामना।
सामिन करना कोपाड़ा के मंडिया गांव से मकामी लोग शिकायत कर रहे हैं कि मिडिल स्कूल मंडिया 2 साल कबल एक दरख्त की जद में आया और इससे इमारत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इस स्कूल को दूसरे एक स्कूल में मुंतकिल करना पड़ा जहां बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं हैं और जो बच्चे जाते हैं उन्हें तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। हम नौवां गबरा तहसील कन्ना से ताल्लुक़ रखते हैं। तकरीबन 2 साल से मिडिल स्कूल मडियाँ जो कि नौवां गबरा में ही आता है, जो एक दरख्त की ज़द में आकर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। स्कूल की इमारत टोटली डैमेज हो चुकी है और मिडिल स्कूल मडियाँ को दूसरे महल्ले के प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को वहाँ जाने में तरह तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और तकरीबन 30 से 40 बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल दूर होने की वजह से और किसी भी किस्म की सहूलत न होने की वजह से वो बच्चे वहाँ तालीम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए और महल्ला के बेशऊर अफराद कई मरतबा आला हुकाम तक अपने मुतालबे को लेकर गए, जिसका नतीजा यही निकला कि अभी तक सब का सब वैसे का वैसा ही है। इसलिए हम मोहल्ला कमेटी आपकी वसादत से आला हुकाम तक अपने मसाइल को पहुंचाना चाहते हैं। हम शहरबीन की वसादत से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये इत्तला देना चाहते हैं कि हमारा मिडिल स्कूल जो यूपीएस मडिया है वो 3 साल उसको एक दरख्त की ज़द में आकर वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जो कि यूपीएस मडिया को शिफ्ट किया गया है पीएस लोहार मला में। हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि हमारा यूपीएस मडिया को जल्द से जल्द तामीर की जाए। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ जो रोड भी है वो भी खस्ता हाल है, सिंगल रोड है। यहाँ पर जब गाड़ियाँ आती हैं तो बच्चे छोटे हैं वो दरम बरम हो जाते हैं और लोगों को अक्सर इस तरह सोचते हैं कि हमारा बच्चा गिर जाएगा या गाड़ी के नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये भरपूर गुजारिश है कि वो हमारे स्कूल को जल्द से जल्द तामीर करे। अस्ता मुतालबा है ना जनाब कि अस्ता जो स्कूल है ना मडिया प्राइमरी स्कूल मडिया जो कि एक खोड़ दी चढ़े नाल उसते बिल्डिंग है जी जमीन बहुत हो गई है और उस पीछे 2 साल पीछे बच्चे जो दर बदरन और लोहार महल्ले में शिफ्ट किए गए जो कि प्राइमरी स्कूल है जिसे 3 कमरे खोलन और 8 क्लास उस प्राइमरी स्कूल में किस तरह मतलब बराबर आ सकती है। उम्मीद है जिला इंतजामिया इस मामले की तरफ तवज्जो देगी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत।